So hi guys, I am Arvind Bhargav from the Super Guides. Now we are doing a new video for the Super 500 series and the topic is simple and compound interest. टॉपिक अपने आप में बहुत वैल्यूबल है आईपीमेट और दूसरे सिमिलर एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चंस बहुत जरूरी होने वाले हैं। एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चंस देखते चलना और अपन सारे क्वेश्चन एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन के साथ उसको सॉल्व करेंगे। सो let's we start with question number 1. Read question number 1. Total amount given 35 lakh. 35 lakh divided into two daughters, age of first 8.5 years and for second 16 years. And the question is, when they reach at the age of 21 years, they will get a equal amount. They will get a equal amount. और क्वेश्चन के अंदर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों का सम। ठीक है, तो फर्स्ट वाले जो डॉटर है उसकी एज कितनी है आपके पास? 8.5 ईयर्स। 8.5 ईयर्स up to 21 year, and for second it is 16 year. So the first daughter gets total time how much? 12.5 years. This is 5 year. So actual में 35 lakh को this is the total principal divided into P1 and P2. First get time 12.5 years and rate is given 10%, and second one gets time is 5 years and rate is also 10%, and at the age of 21 years, they will get equal amount. So A1 equals to A2. What is A? A is sum of principal and interest. So A1 equals to A2. A1 is principal P1 plus interest. A2 equals to P2 plus I2. So P1 plus I1. P1 rate is 10%, time is 12.5 years upon 100. Same for A2, P2 plus I2. Principal is P2, time is 5 years and rate is 10%. So A1 equals to A2. Now we can solve A1 equals to A2. P1 कॉमन कर सकते हैं यहां से कुछ, that is 125 upon 100. So P1 plus 125 100. So 5 P1 upon 4. P2 plus 50 upon 100. P2 by 2. So 4 or 5 9. 9 P1 upon 4 equals to 3 P2 upon 2. So finally P1 upon P2 equals to 4 3 12 9 to 18 2:3. So the ratio of the principal between two daughters 2:3. Ratio of the principal between two daughters 2:3. So the total amount 35 lakh divided into 2:3. 35 lakh first daughter, second daughter 2:3. And the question is how much did the elder daughter get at the time at the age of 21 years. So you have to find section 3/5.
3/5 of the 35 lakh, 5 7 21 lakh. Elder daughter, second one. So your answer is 21 lakh. Option is option B. ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था. जनरली जो मिस्टेक करते हैं लोग कहां करते हैं, यहां एक्चुअल में बोला है उनका अमाउंट इक्वल होना चाहिए, बट लोग बाय मिस्टेक यहां क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट को इक्वेट कर देते हैं, I1 इक्वल टू I2, बट द क्वेश्चन इज फॉर द अमाउंट्स A1 एंड A2. A1 इक्वल टू P1 प्लस I1, A2 इक्वल टू P2 प्लस I2. सो गाइस आप लोग नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को. Move to question number 2. Read question number 2. Read question number 2. Someone invested one half of the saving in a bond for the 2 years. Interest is 550. Simple interest is 550 for the 2 years. And compound interest for the 2 years remaining half 605. 605. Value of his total saving before the investing in the 2 bonds. टोटल प्रिंसिपल की बात कर रहा है जो डिवाइड किया आपने, हाफ यहां और हाफ यहां. हाफ प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट एंड हाफ प्रिंसिपल फॉर दी compound interest. So guys, total simple interest given 550 and total compound interest given how much, 605. As you know, every year one gets इक्वल सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है. फॉर द 2 years इफ इट इज 550, फॉर द 1 year नाउ इट बिकम 275 rupees, एंड फॉर द सेकेंड ईयर ऑल्सो इट इज 275, बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता है एवरी ईयर, क्योंकि ना तो उसमें प्रिंसिपल चेंज होता, ना रेट, ना टाइम. टाइम अगर 1 year हर जगह सेम है तो इक्वल सिंपल इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है. और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गिवन है, 605, और ये भी 2 years के लिए. लेकिन बच्चों 1 year के लिए, 1 year के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए SI एंड CI इक्वल होता है, क्योंकि वहां कोई भी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता. तो फर्स्ट ईयर का जो CI होगा वो भी 275 होगा. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर 605 minus 275. Now it is 0, 10, 7, 3 और 5 to 3. So this is 330. ठीक है, 330. इसमें प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कितना होगा, अगेन 275, एंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कितना होगा, 330 minus 275. So this is 55 rupees. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर पर प्रिंसिपल पर भी इंटरेस्ट काउंट हो रहा है और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी काउंट हो रहा है. तो ये इंटरेस्ट है प्रिंसिपल पर, इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल, एंड दिस इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ 1 year, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर. दिस इज 275. तो आपको रेट परसेंट फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, रेट परसेंट. सो 55 rupees is interest on rupees 275. So finally rate percent is 55 upon 275 multiply by 100. We can solve this. 55 upon 275 multiply by 100. So I think this has become 1 by 5 to 20%. So rate is finally 20%. So interest of 1 year
प्रिंसिपल का कितना 20%, दैट इज 275. So principal equals to 5 times of 275. 5 times of 275, this is 1375. ये वो प्रिंसिपल है जो आपने SI या CI पर दिया था, बट दिस इज हाफ ऑफ द टोटल प्रिंसिपल. दिस इज हाफ ऑफ द टोटल प्रिंसिपल. सो फाइनली टोटल प्रिंसिपल इज 1375 into 2. How much? 2750. 2750. Option is which one? Option I think D. So guys, कॉन्सेप्ट क्या था फाइनली? कॉन्सेप्ट ये था आपके पास कि फर्स्ट ईयर का SI और CI सेम होता है. फर्स्ट पॉइंट तो ये. एंड सेकेंड पॉइंट आपके पास ये है कि जो सेकेंड ईयर होता है उस पर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मींस जो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट हुआ उस पर भी फर्दर इंटरेस्ट काउंट होता है विद द सेम रेट दैट इज इन द क्वेश्चन. सो आपने रेट फाइंड करने का जो ये वाला काम किया, ये बहुत जरूरी काम था, ये वाला पार्ट. ठीक है, तो 55 इंटरेस्ट लगा फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 275. दैट्स व्हाई रेट इज 20%. और उसी रेट को आपने फाइनली यहां से प्रिंसिपल फाइंड किया, बट ये प्रिंसिपल हाफ ऑफ द टोटल प्रिंसिपल था. दैट्स व्हाई टोटल प्रिंसिपल यू गेट 2750. सो आई थिंक क्लियर होगा, नोट कर सकते हैं. सो गाइस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. रीड क्वेश्चन नंबर 3. Beginning of the 2004 up to beginning of the 2010. Beginning of the 2004 means from the 2003. 3, 4, 5, 6, 7. In the beginning of the 7, the accumulated interest is 10,000. Means up to यहाँ तक interest is 10,000. Beginning of the 7 means end of the 6. And in the beginning of the 10, accumulated interest become 25,000. So 9, 8 and 9 up to this. Total interest is 25,000. Compound interest. Everything is compound. So the question is, the principal amount is, क्या फाइंड करना है आपको? P फाइंड करना है, ओरिजिनल प्रिंसिपल फाइंड करना है. ठीक है. सो गाइस, इन 3 इयर्स का इंटरेस्ट 3, 4, 4, 5 and 5, 6. इन 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना आया? 10,000. सो 6 to 9 दिस 3 ईयर इंटरेस्ट इज 15,000. ये अप टू 3 इयर्स, फर्स्ट 3 इयर्स 10,000 एंड इन द नेक्स्ट 3 इयर्स इट इज 15. तो बच्चों एक बात समझना, ये क्वेश्चन 2 पार्ट में आपके पास डिवाइड हो गया. First 3 years it is 10,000 CI and next 3 years it is 15,000. बट एक बात बताना, यहां इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी होगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी होगा, तो ये 10,000 तो होगा ही सही. ये वाला जितना 3 यहां था उतना ही 3 यहां है. और यू कैन से नाउ इट इज इंक्रीजिंग बाय 1.5 टाइम्स. 1.5 टाइम्स. 10,000 15,000 क्या रिलेशन है? 1.5 टाइम्स. तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जस्ट 50% इंटरेस्ट यहां पर अप्लाई हो रहा है. और यू कैन से इंटरेस्ट is 50% in 3 years
ऑफ द प्रिंसिपल। 10,000 से कितना बढ़ गया 50%, दैट्स व्हाई इट बिकम 15। तो यहां प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल का 50% 10,000, सो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 20,000। प्रिंसिपल का 50% अगर 10,000 है तो टोटल प्रिंसिपल कितना होगा 20,000। तो आपका यही क्वेश्चन है सिंपली कि टोटल प्रिंसिपल कितना था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। फर्स्ट 3 इयर्स 10,000, नेक्स्ट 3 इयर्स 15। सो एवरी 3 इयर्स में प्रिंसिपल कितना इंक्रीज हो रहा है 1.5 टाइम्स, मतलब 50% इंटरेस्ट दे रहा है। तो प्रिंसिपल का 50% अगर 10,000 था तो एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना होगा 20,000। आप नोट कर सकते हैं। सो गाइस रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्चुअल में इनिशियल प्रिंसिपल गिवन 45,000 एंड ये प्रिंसिपल रिटर्न किया जाता है एवरी ईयर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और जो 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मींस उनका डिफरेंस सेम है, यही होता है एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी 3 वैल्यूज होती हैं उन तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो आपसे क्वेश्चन यही बोल रहा है प्रिंसिपल इज 45,000 एंड टोटल अमाउंट रिटर्न इज 54,000, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और तो सर टोटल जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तीनों इंस्टॉलमेंट्स होंगी, तीनों वैल्यूज होंगी, वो हमने एज्यूम की a माइनस डी, a प्लस डी, और इन तीनों का सम कितना होगा 54,000। सो d एंड d कैंसल हो गया, 3a इक्वल्स टू 54,000, सो a इक्वल्स टू 18,000। तो जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज a minus d, that is 18,000 minus d, and second installment is a 18,000 because a की वैल्यू 18,000 है। थर्ड इंस्टॉलमेंट इज a प्लस डी, 18,000 प्लस डी। डी की वैल्यू आपके पास नहीं है, ये आपको अभी फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट तो अपन ने क्या फाइंड कर लिया, ए की वैल्यू 18,000 है, जो आपके पास सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। जो आपके पास कौन सी इंस्टॉलमेंट होगी, सेकंड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये वाली है, और ये फाइनली कौन सी इंस्टॉलमेंट है, थर्ड वाली, 18,000 प्लस डी। अब बच्चों एक बात समझना, रेट 10% है, जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट होगा उस प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अप्लाई होगा एंड टोटल अमाउंट बनेगा। फिर कस्टमर उसमें से क्या करेगा, एक कोई पार्ट पे कर देगा और रिमेनिंग अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाएगा। लोग इसी बात में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं। क्या होगा, कोई भी प्रिंसिपल आपने स्टार्ट किया, 1 ईयर हुआ, इंटरेस्ट अप्लाई हुआ, अमाउंट बन गया, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इसमें से एक इंस्टॉलमेंट आपने पे कर दी, तो जो पे कर दी वो माइनस हो गई, रिमेनिंग वैल्यू इज बिकम प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो सेम पॉइंट यहां हो रहा है, देखना जरा। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 45,000 है, इंटरेस्ट इज 10%, 4,500। तो टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 49,500। इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट आफ्टर 1 ईयर 45 एंड 49,500। अब इसमें से कितना इंटरेस्ट पे कर दिया, 18,000 माइनस डी। यही थी अपनी पहली इंस्टॉलमेंट, देखो जरा ये लिखा है। तो आपके पास प्रिंसिपल फाइनली कितना बचेगा फॉर दी सेकेंड ईयर, 31,500 प्लस डी। यहां भी रेट 10% है, तो यहां इंटरेस्ट लगेगा इसका 10%, तो इसका 10% 13,150 एंड 1.1 डी। ठीक है, 0.1 डी। सो अमाउंट इज 34,650 एंड 1.1 डी। अब यहां से सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी है 18,000, तो इसको माइनस कर दिया 18,000 को अपन ने। तो फाइनली जो प्रिंसिपल बचा आपके पास थर्ड ईयर के लिए वो कितना बचा, ये वाला। रेट यहां भी 10% है, फिर से यहां इंटरेस्ट लग जाएगा 10% और अमाउंट बनेगा 1.1 ऑफ टोटल प्रिंसिपल।
और ये टोटल फाइनली अमाउंट आप पे करोगे थर्ड इंस्टॉलमेंट में। इस बात पर ध्यान देना बेटा। तो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट जो होने वाली है वो कितनी होने वाली है? टोटल रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू 1.1 ऑफ 16,650 प्लस 1.1 ऑफ डी। तो आपने जो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे की वो इसके इक्वल है, याद रखना, थर्ड इंस्टॉलमेंट इसके इक्वल है। ठीक है, तो आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट को अपन इक्वेट कर ले इससे, लास्ट इंस्टॉलमेंट को 1.1 ऑफ डी, 1.1 ऑफ 16,650 प्लस 1.1 ऑफ डी किसके इक्वल है? 18,000 प्लस डी, 18,000 प्लस डी। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.1 है और यहां 0 भी है। दिस इज 18,315 प्लस 1.21 डी, 18,000 प्लस डी। 1.21 में से ये माइनस होगा 0.21 डी और 18,000 में से ये माइनस होगा तो -315। सो डी इक्वल्स टू 315 अपॉन 0.21 विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। सो दिस इज आई थिंक 1500। सो डी इज 1500 विथ माइनस साइन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बेटा क्या आने वाली है आपके पास? 18,000 माइनस डी। सो डी इज माइनस 1500। सो आंसर इज 19,500। आंसर इज 19,500। ऑप्शन बी, ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से देखो, क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखेगा बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना देखने में लग रहा है। ठीक है, सिंपली कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। जो भी अमाउंट बनेगा उसमें से आपने एक इंस्टॉलमेंट वापस कर दी और जो रिमेनिंग प्रिंसिपल होगा वो नेक्स्ट ईयर पर चला जाएगा। फिर उसमें से अमाउंट बना, फिर आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट। थर्ड इंस्टॉलमेंट किसकी इक्वल होगी सर? जो टोटल आउटस्टैंडिंग वैल्यू है आफ्टर दी 3 ईयर, दैट इज 1.1 ऑफ दिस, वो इक्वल होगी थर्ड इंस्टॉलमेंट के। अच्छे से देख लो, नोट कर लो। सो मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। रीड क्वेश्चन नंबर 5। डिपॉजिट रुपीज P, रेट R%, 16P in 20 years. So this is principal P. Amount is 16P. The time of 20 years with the compound interest. So question is, if he had invested the same amount at R% simple interest for the 20 years, amount क्या होगा? अमाउंट क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले तो अपन रेट के लिए सोचते हैं। अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 पर T नंबर ऑफ ईयर्स। सो अमाउंट इज 16P, 1 प्लस R/100, टाइम इज 20 ईयर्स। सो P and P कैंसल, 16 2 raised to the power 4, 1 प्लस R/100, 5 and पावर 4। सो पार्स इक्वेट हो जाएंगे, 2 इक्वल्स टू 1 प्लस R/100 पावर 5। अब यहां आपके सामने एक बड़ा चैलेंज होगा रेट फाइंड करने का। ठीक है, और यहां इंट्रोड्यूस होता है आपके पास रूल ऑफ 72। फाइनेंस का एक सिंपल सा रूल है, रूल ऑफ 72। जो लोग नहीं जानते बहुत अच्छे से देखना। व्हाट इज रूल ऑफ 72? रूल ऑफ 72, जब अपन यहां इस केस में रेट फाइंड नहीं कर पा रहे, मींस प्रिंसिपल डबल हो रहा है इन द टाइम ऑफ 5 ईयर्स। प्रिंसिपल डबल हो रहा है कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में। तो रेट परसेंट क्या होगी? प्रिंसिपल कितना अमाउंट बना रहा है? 2P इन हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स, इन 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? रेट क्या होगी? तो आपको क्या फाइंड करना है? रेट फाइंड करना है, रेट परसेंट फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो रूल ऑफ 72 आपसे क्या कहता है? रूल ऑफ 72 आपसे बोलता है इफ अ प्रिंसिपल डबल
if a principal double of itself in n years, then rate equals to 72 by n. If a principal double of itself in n number of years, then rate equals to 72 by n. और ये रूल जो है अप्रॉक्स वैल्यू देता है, एग्जैक्ट वैल्यू ये भी नहीं देता. सो आपके पास रेट फाइंड करना है, एन आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल डबल इन 5 years, प्रिंसिपल डबल इन 5 years, so rate equals to 72 by 5. So this is something 515, approx 15 years, sorry approx 15%. this is rate. याद रखना बच्चों ये अप्रोक्स वैल्यू है, कहीं भी मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोल रहा हूं. सो अप्रोक्स रेट इज 15%. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो अमाउंट कितना होगा, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो अमाउंट कितना होता. सो रेट आ गई आपके पास 15%, अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस PRT अपॉन 100. So principal P. Now rate 15, time is 20 years. So this is something P plus 3P. तो अराउंड 4P के आसपास आपके पास क्या होने वाला है, नया वाला क्या आएगा, अमाउंट आएगा. तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, बिटवीन 3P 3.5 to 4P. So correct answer is option D. Correct answer is option D. Rule of 72 याद रखना, rule of 72 याद रखना. So guys, read question number 6. Interest of 600 for the 2 years at the simple interest. For the 2 years simple interest 600. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या बोल रहा है, 630. सिंपल इंटरेस्ट इज 600, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 630. सो द क्वेश्चन इज फॉर रेट परसेंट. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, रेट परसेंट. सो गाइस 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट 600 है तो 1 ईयर का भी 300 होगा, सेकेंड ईयर का भी 300 होगा, 300 and 300 for the first and second year. For compound interest, if it is 630, so for the first year it is the equal of the simple interest, equal to SI. But for the second year 330 also, 330 also. What is 30? Interest on interest. What is 30? Interest on interest. So the question is for the rate percent, 30 interest, for the previous interest 300. So finally rate is simply 10%. Correct answer is option D. ये कॉन्सेप्ट अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज हुआ था, देखो जरा. इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट निकलता है वो प्रिंसिपल पर भी निकलता है, इंटरेस्ट पर भी निकलता है. सो दिस 300 फॉर द प्रिंसिपल एंड दिस 330 फॉर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. सो चेक फाइनली क्वेश्चन नंबर 6. रीड क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? Interest is 50%. Interest is 50%. However, never gets caught because he gives 20% of his total capital as bribe. Interest 50% बनता है जो भी प्रिंसिपल होता है उस पर, ठीक है. बट उसमें से वो 20% ब्राइब दे देता है और जो रिमेनिंग वैल्यू होती है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाती है, प्रिंसिपल बन जाती है. यही आपसे बोल रहा है, ठीक है. फिर इफ इन द बिगिनिंग
of the fourth year he has a capital of 25,000 to invest. How much bribe did at the end of the second year? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में. दिस इज फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से सेकंड ईयर स्टार्ट होगा, थर्ड ईयर, और यहां से फोर्थ स्टार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल हमने एज्यूम किया यहां प्रिंसिपल 100 था. इनिशियली प्रिंसिपल कितना था? 100. ठीक है. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ब्राइब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ब्राइब डिड ही गिव एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. ये आपका क्वेश्चन है, याद रखना. प्रिंसिपल 100 है. ठीक है. रेट 50%. 50% इंटरेस्ट लगता है इन ईच ईयर. सो अमाउंट कितना होगा बेटा? फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना हो जाएगा? 150. अमाउंट कितना होगा? 150. इसमें से ब्राइब कितनी देगा वो? ब्राइब कितनी देगा? बिफोर ब्राइब, ब्राइब देगा कितना? 20%. कितना? 20% ऑफ द अमाउंट. सो दिस इज 1/5. फाइनली 30 रुपीज उसने ब्राइब दे दिए. तो जो प्रिंसिपल होगा फॉर द नेक्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ब्राइब माइनस करो, 150 माइनस 30, इट इज 120. कॉन्सेप्ट समझ आया? क्या होगा? 50% इंटरेस्ट अप्लाई होगा. कर दिया. अमाउंट 150, उसका 1/5. बाय 1/5 20% ऑफ द टोटल वैल्यू 30 वो देना है ब्राइब. ठीक है. वो आपने घूस दे दी. तो रिमेनिंग जो होगा वो प्रिंसिपल बनेगा किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए. ये इतना सा कॉन्सेप्ट है. बाकी क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इतना याद रखना. इंटरेस्ट 50%, 20% 1/5 फॉर दी ब्राइब, और जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो प्रिंसिपल बनेगी किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए. इतनी बात ठीक है सबको? मूव करें आगे. अब देखना जरा फॉर द सेकेंड ईयर. फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज 120. रेट यहां भी 50% है, 60 रुपीज. रेट यहां भी 50% है, 60 रुपीज. तो अमाउंट कितना हो गया? 180. ब्राइब कितना देना है? 1/5. 180/5 कितना आ जाएगा? 36 रुपीज. सो प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर 180 minus 36, remaining how much? 144. प्रिंसिपल फॉर दी थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में एंट्री ले ली, बिल्कुल थर्ड ईयर में एंट्री ले ली. प्रिंसिपल 144. इंटरेस्ट यहां भी 50%, 72. सो अमाउंट इज 144 plus 72, 216. Bribe 1/5. How much? 43.2. Principal for the fourth year 216 minus 43.2. You get how much? 0.2. 6 minus 3, sorry, 0.8. 172.8. Principal for the fourth year. So this is your fourth year. फोर्थ ईयर में आपके पास प्रिंसिपल इतना होगा. अब क्वेश्चन में क्या गिवन था? क्वेश्चन पर फिर से आते हैं. क्या बोल रहा है? इन द बिगिनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर, in the beginning of the fourth year capital is 25,000. आपके पास सिंबलिक वैल्यू क्या है? 172.8. और ये वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है? 25,000. चेक करो, ये गिवन है. हाउ मच ब्राइब डिड ही गिव एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी ब्राइब दी थी? 36. दिख रहा है ये सबको?
एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी ब्राइब दी थी उसने? 36। तो बच्चों इन दोनों डेटा को अपन लिखते हैं, दिस वन आफ्टर 3 years एंड ब्राइब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो अपन इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं और आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। क्या? अमाउंट आफ्टर 3 years कितना गिवन है? आपका आया 172.8 सिंबलिक, बट एक्चुअल में कितना गिवन है? 25,000। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ब्राइब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ब्राइब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सिंबलिक फॉर्म कितना है? 36। याद रखना है इसको। तो अब यूनिटरी मेथड का यूज करें। इफ 172.8 represents 25,000, then 1 equals to 25,000 upon 172.8. Then you have to find 36. So 36 represent multiply by 36. तो आपके पास क्लियरली आंसर कितना आएगा? 36 से अगर इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा? 5 से छोटी वैल्यू आएगी। 5 6 36 इंटू 5 कितना होगा? कैलकुलेशन देखना, 180, बट यू हैव 172.5, सो दिस इज लेस देन 5, और लेस देन 5 वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे 25,000 को, वैल्यू इज लेस देन 5। ये वैल्यू कितनी है? लेस देन 5, सो यू गेट 5,000 प्लस वैल्यू, यू गेट 5,000 प्लस वैल्यू। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपके पास होगा B 5200। सो करेक्ट आंसर इज B 5200। अगर बच्चों इसको एग्जैक्ट डिवाइड करोगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आएगी 5208 समथिंग, इतनी कुछ आएगी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B 5200। ये भी आपसे कुछ अप्रोक्स वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। मेन पॉइंट क्या था? 50% इंटरेस्ट लगेगा, 20% ब्राइब देना है, रिमेनिंग वैल्यू प्रिंसिपल बन जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। ये वाली बात ठीक है सबको? सो फाइनली नोट क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर टोटल 3 people A, B and G इन्वेस्ट मनी इन द रेशो 3:5। प्रिंसिपल का रेशो गिवन है। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट इन द रेशो ऑफ 6:4, ये भी ठीक है, रेट का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट इनकम आफ्टर 1 year if interest of B exceed A by 250। A और B का डिफरेंस दिया है 1 year के लिए। ठीक है, A और B का इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया है कितना? 250। तो देखना बच्चों, देयर आर 3 people A, B and G। रेशो ऑफ प्रिंसिपल, रेशो ऑफ प्रिंसिपल 3:4:5। चेक करना, यही गिवन है 3:4:5। रेट परसेंट 654, 654। ठीक है, और बी और ए के लिए क्या दिया है? डिफरेंस दिया है। बी और ए के लिए क्या दिया है? डिफरेंस दिया है 250। तो बच्चों देखना, यहां अपन कुछ अज्यूम कर सकते हैं। क्या? ए का जो प्रिंसिपल है कुछ सिंपल वैल्यू अज्यूम कर लो। यू कैन अज्यूम इट 300x, 300x, दिस इज 400x, दिस इज 500x। रेट्स ये भी अज्यूम कर लो, दिस इज समथिंग 6y%, this is 5y% per annum, this is 4y% per annum। सो आपने प्रिंसिपल एज्यूम किए ABG के लिए एंड रेट्स भी एज्यूम की 6y%, 5y%, 4y%। टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1 year ये आपको फाइंड करना है। बट एक चीज और गिवन है, B का इंटरेस्ट माइनस A का इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस दिया है कितना? 250। इसका यूज कर सकते हैं अपन। B का इंटरेस्ट कितना होगा बच्चों?
400 का 5/%, 400 का 5/%, सो 400x का 5/20xy कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखना इधर 400x का हाउ मच 5/%, सो नाउ इट इज 20xy। ए के लिए 300 का 6y%, 300x का 6y%, so this is 18xy, so difference is 250, 20 minus 18 2xy, so xy equals to 125, xy equals to what 125। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा था, टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, टोटल इंटरेस्ट ऑफ ए बी एंड जी। ठीक है, तो ए का आ जाएगा 300 का 6y, ये तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके, 18xy प्लस बी के लिए 20xy, जी के लिए काउंट करना पड़ेगा 500 का 4y 20, ये आएगा 500 का 4y 20xy, so it is 20 40 58xy and you have calculated xy equals to 125. Use this 58 into 125, so it is 5800 and 7250, 7250, option A. So guys, this is question number 8. इसमें सबसे बड़ा पॉइंट था ये assumption कि आप कितना बेटर तरीके से इनको एज्यूम करते हो, 300x 400x 500, 6y%, 5y%, 4y%। So guys, finally this is super 500 series for the simple and compound interest video। So अपने इस टॉपिक को, अपनी इस क्लास को अपन यहीं कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आप सब लोग सुपर 500 सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स का यूज कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चंस की, और ये आपके एग्जाम्स में बहुत काम में भी आने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस यूज करते रहिए इन सारे वीडियोस का और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।